जी भाई स्टार्ट करें, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं मैं दोबारा। हाँ रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करके ना तो स्टार्ट करें। बड़ी मुश्किल से यार इशू रिजॉल्व हुआ है, मैं तो खुद बड़ा मतलब ओके भाई सही बात। चले आवाज आ रही है ये हाँ अली जवेद जी भाई स्टार्टिंग। जी। Assalamu alaikum everyone. This is Ali Javed here, executive member of ICE Students Chapter UT Texla, and even head of this webinar as well. First of all, a very warm welcome to our honorable guest Sir Ali Ejaz, and a very warm welcome to our audience as well. Now, without wasting any time, we'll have a brief introduction of ICE. For that, I would like to call my co-host Arfa Farooq. Yes, Arfa, over to you. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining us for today's webinar. My name is Arfa Farooq and I am General Member of ICE UET Texla Student Chapter. The mission of ICE is to put civil engineers at the heart of society. ICE is a center for the exchange of knowledge and a provider of resources to encourage innovation and excellence in the profession worldwide. Their 95,000 members help to create the structures and systems that sustain society. They are responsible for designing, building, maintaining, and improving bridges, roads, canals, docks, office buildings, schools, hospitals, airports, power stations, railways, flood defenses, water treatment facilities. ICE makes sure that high standards to become a professional engineer are met. It is important for us to keep telling society what civil engineers do. ICE has several student chapters in several countries including Pakistan, India, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, UAE, etc. So, maintaining our tradition, we bring you another informative session about career counseling. Now, Ms. Lare will further continue. Over to you, Ms. Lare. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. I am Lare Fatma, General Member of ICE UT Texla Student Chapter. I am truly thankful to the students of UT Lahore, UT Peshawar, NASC, Agriculture University Faisalabad, NED, BZU, Mirpur Azad Kashmir University, NFC, and many more. Now, without further delay, I will turn the time over Sir Ali Ejaz. Thank you so much, sir, for sparing your time for us. Our honorable speaker is a trendsetter in Pakistan for engineers to achieve their goals by hard work and believe in Allah. He has done his BSc in 2017 and his Master in Hydraulics and Irrigation in 2020. He has passed 7 consecutive exams of different departments. He has gotten 2017 PPSC recommendation in Punjab Irrigation, 2020 PPSC recommendation SDO Public Health. He is currently serving as SDO Wabda at Wabda House, Lahore. This is a brief introduction of our respected guests. I would like to invite our honorable guest, Sir Ali Ejaz. Over to you, sir. वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आइस यूईटी टेक्सला। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं उन्हें अपने फ्यूचर का थोड़ा आइडिया हो सके। तो आइस यूईटी टेक्सला की जो कंप्लीट टीम है, सरोज उसके टीम लीडर और बाकी आप लोग जो मेंबर्स हैं, सबको मेरी तरफ से सबसे पहले मुबारकबाद। आप लोगों ने सर काशिफ के साथ बड़ा अच्छा सेमिनार अरेंज किया, मैंने वो सारा फॉलो किया था। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। अभी आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, करियर काउंसलिंग। देखिए पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तमाम लोगों को? ये जरा एक बार कंफर्म कर ले क्योंकि मेरा ऑडियो का इशू आ रहा था। जी अली भाई आ रही है आपकी आवाज। चले ठीक है, थैंक यू। चले स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का बेसिकली एक तो ट्रेंड ही नहीं है। सबसे पहले जो मेरी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी इस वेबिनार में वेलकम करता हूँ। इंट्रोडक्शन मेरा बड़ा अच्छा दे चुके हैं आइस वाले। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का बेसिकली ट्रेंड ही नहीं है। आप लोगों ने जब हम लोगों ने भी एडमिशन लिया या जब आप लोगों ने भी यूईटी टेक्सला में, यूईटी लाहौर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, बीजेडयू में एडमिशन लिया, तो सबसे पहले तो आपको उसी वक्त करियर काउंसलिंग की बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप ये चीज अपने से जरूर रिलेट करेंगे। देखिए आपको, आपका पैशन था केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपका मेरिट बना सिविल इंजीनियरिंग में, इसलिए आप बाय डिफॉल्ट सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में आपका मेरिट नहीं आ सका। तो स्टेज 1 जो है, बेसिकली ये 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो आप लोग क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि एफएससी के फौरन बाद जब आप लोगों ने अपना प्रोफेशन चूज करना था,
उस वक्त आपने अपने पैशन को फॉलो मोस्टली पाकिस्तान में नहीं किया जाता। बस जी जहां मेरिट बना वहां मैंने एडमिशन ले लिया। उसकी मैं आपको एग्जांपल बड़ी अच्छी दे चुका हूं कि आपका पैशन कुछ और था, बीएस कंप्यूटर साइंसेस करना था, कुछ भी करना था, बट वालिदैन के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आपने सबसे पहले तो जहां मेरिट बना वो जिसमें भी बन गया, आप इस वक्त उसमें अपना स्टडी कर रहे हैं, अपनी जो बीएससी इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब स्टेज 2 की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। देखिए प्रोफेशनल करियर आपने चूज कर लिया, अब कोई 6 सेमेस्टर में स्टडी कर रहा है, कोई 7th में है, कोई पास आउट होके किसी के मतलब इन हैंड बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, जो पहले हो चुका उसको अब हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं कि स्टेज 2 में हम किस तरह अपने स्टेज 1 में जो हमसे गलत फैसले हो चुके हैं उनको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं। अब एक सिविल इंजीनियर बेसिकली मोस्टली मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त सिविल इंजीनियरिंग व्यूअरशिप है हमारी, वो सिविल इंजीनियर्स हमें फॉलो कर रहे होंगे। तो एक बीएससी सिविल इंजीनियरिंग जब वो पास आउट होता है तो उसके पास आउट होने के बाद पाकिस्तान में उसे रिकग्निशन के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस चाहिए, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विजिट करने के बाद आपको वो लाइसेंस दे देगी। उस लाइसेंस के बाद आप लोग एलिजिबल हैं पाकिस्तान में बीइंग इंजीनियर, यानी आप अपने नाम के साथ वर्ड इंजीनियर यूज कर सकते हैं। अब आप पाकिस्तान में इंजीनियर तो बन चुके हैं, फर्दर आपने परसू क्या करना है। तो उस परसू करने के लिए जो मैंने चीजों को एनालाइज किया है वो मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। कोई भी सिविल इंजीनियर बात करते हैं कि अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट पास आउट होके दिसंबर 2021 में पास आउट होके वो अपने घर जब वापस आया तो अब उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है स्टेज 2 पे वो है उसके पास कोई ना कोई जॉब। अब जॉब में भी 2-3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले या तो वो गवर्नमेंट जॉब को परसू कर सकता है, नंबर 2 वो कोई प्राइवेट जॉब परसू कर सकता है। ये हमारे पास ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 और एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास क्या उसके करियर में वो किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ऑप्शन 2 है उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर ले, वो फ्रीलांसिंग शुरू कर ले, अमेज़न पे वर्क शुरू कर ले, फाइबर पे वर्क शुरू कर ले, अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर ले, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले या इंजीनियरिंग को एक साइड पे रख के कोई भी इनिशिएटिव ले ले। ये है उसके पास सेकंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में ही मास्टर्स परसू करे किसी भी इदारे से, या वो स्कॉलरशिप के लिए बाहर चला जाए। बेसिकली 3 ऑप्शंस पाकिस्तान में फ्रेश ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल है। वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जॉब वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी वो बिजनेस कर ले, मटेरियल सेलिंग कर ले, कुछ भी कर ले। नंबर 3 वो अपनी हायर स्टडीज को परसू करे, मास्टर्स में एडमिशन ले, स्कॉलरशिप ले। अब इसको थोड़ा सा ना, ये जो अभी मैं बात करने लगा हूँ ना ये बड़ी क्रिटिकल है। जिस बंदे को ये चीज समझ आ गई पाकिस्तान जैसे कंट्री में इवन वो लाइफ में कभी नाकाम नहीं हो सकता, जो अभी मैं बात करने लगा हूँ। अब ये क्या है, अपनी जात को सेल्फ एनालाइज करें, तसल्ली से बैठे, अपने रूम में बैठे, अपने जो आपके करीबी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, उस बंदे को कहें कि यार मुझे एनालाइज करो, मैं चीज क्या हूं, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज है। अब इस एनालाइज करने का आपको क्या बेनिफिट होगा वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक पाकिस्तान में एक इंजीनियर है जिसकी स्पीकिंग स्किल बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा उसका स्पीकिंग स्टाइल है, कम्युनिकेशन स्किल पे उसको बड़ी उसकी ग्रिप है। अब देखें वो बंदा कोई 9 to 5 जॉब करता है तो मैं समझता हूँ ये फेलियर है। अगर वही बंदा पाकिस्तान में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का वो सेल्स मैनेजर बन जाता है तो वो कंपनी आई एम श्योर वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से वो कंपनी जो है वो बहुत हाई मार्क्स जो है वो अचीव कर सकती है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन सेल्फ एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल। इसी तरह एक बंदा एक कैंडिडेट है वो समझता है कि जी मेरी डिजाइनिंग में बहुत अच्छी ग्रिप है, उस बंदे को डिजाइनिंग परस्यू करनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान में एक बेड़ चाल वाला सिस्टम है ना कि ये बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ये बंदा डिजाइन कर रहा है, ये नेस्ट पार्क में है, ये डेस्कॉन में है, ये वापदा, इस चीज को फॉलो करने से पहले सबसे पहले आप अपनी एबिलिटीज, आप क्या चीज है, अपने आप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। कि देखें एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि अगर आपका पैशन
आपका रोजगार बन जाता है तो आप जिंदगी के सबसे कामयाब इंसान हैं। तो सबसे पहले जब आप लोगों ने पास आउट होना है, अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या चीज है। ये है पॉइंट 1। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि किस तरह आपकी एबिलिटी आपको कहां से कहां ले जा सकती है। नंबर 2 में हमारे पास है एक बड़ी फेमस, और हमारे पास एक कोट है कि वर्क स्मार्टली रादर देन हार्डली। अभी जो मॉडर्न एरा है ना, इसमें ये वाला जो हमारी चीज है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि स्मार्टली वर्क करें, बजाय गधे की तरह लगे रहें दिन रात। आपको सभी को इन चीजें कि एक मजदूर है वो सारा दिन लगा रहता है, लेकिन एट द एंड उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है? वही 1500, 2000, 1200। लेकिन अगर चीजों को हम स्मार्टली ट्रिक्स के साथ लेके चले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं इन जो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताई हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई जॉब के हैं 2 पार्ट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। अब पाकिस्तान में अपने अपने करियर को परस्यू करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में पाकिस्तान में इस वक्त 100% मेरिट है। मेरे सामने मेरा फेसबुक पे पेज है सिविल नॉलेज फैक्ट्री। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इंजीनियर अली इजाज या अली इजाज PPSC, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उस चैनल पे अब तक 150 वीडियोस हो चुकी हैं, SDOs के साथ इंटरव्यूज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मेरिट है 100%। अगर कोई स्टूडेंट, कोई यंग एस्पिरेंट 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट ये समझता है कि मेरे लिंक्स हैं, मेरे वालिद साहब बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, उन्होंने एक कॉल करनी है, तो ये टाइम जा चुका है। इस वक्त मेरिट है। अब मेरिट पे सीट लेने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे मौजूद हैं? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद है, NTS और PTS मौजूद है। NTS को तो आजकल मेरा ख्याल है कम टेस्ट मिल रहे हैं, मोस्टली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये चीज मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जब राइट डायरेक्शन और राइट मोटिवेशन के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या FPSC की तैयारी करेंगे तो आपको मेरिट पे पाकिस्तान में 17 ग्रेड, एक इंजीनियर के लिए जो जॉब स्टार्ट होती है पाकिस्तान में वो है 17 ग्रेड। आप सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो पार्ट 2 है प्राइवेट सेक्टर, वो इतना ग्रो नहीं कर सका। वहां पे एक इंजीनियर के लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप कोई कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि आपकी सेल्फ एबिलिटीज क्या है। अगर तो आप चाहते हैं कि यार चीजें मैं लर्न करूं, मुझे फील्ड की चीजों का आइडिया हो, तो कॉन्ट्रैक्टर सबसे अच्छी जॉब है। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 2 ईयर्स आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब करें, इंशाल्लाह ताला आप बड़े स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बन के वहां से अपने करियर को परस्यू करेंगे। फिर आप कंसल्टेंट में जा सकते हैं। ये हमारे पास 2 ऑप्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास स्टेज 2 थी कि आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही वो है ना कि आप में ये चीज आप करना क्या चाहते हैं, उन एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली अब पाकिस्तान में कौन कौन सी बिजनेस ऑप्शन मौजूद है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मटेरियल सेल कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड है उसमें मटेरियल्स प्रोवाइड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप स्टील प्रोवाइडर बन जाएं, सीमेंट प्रोवाइडर बन जाएं, क्रश प्रोवाइडर बन जाएं, बिलियंस का ये बिजनेस है पाकिस्तान में। नंबर 2, आप अपना सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा साइड बिजनेस कोई भी जिसमें आप समझते हैं, जैसे इवन एक आप अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली इवन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। आप हमारे बहुत से सिविल इंजीनियर दोस्त हैं, वो $1000 कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो ये आपकी अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। नंबर 3, स्कॉलरशिप। अब आप देखें, आप अपनी फैमिली को देखिए, पाकिस्तान में बीइंग अ सिविल इंजीनियर अपने हमें कुछ चीजें देखना पड़ती हैं। कुछ लोग इस चीज को शायद थोड़ा नेगेटिव लें। पाकिस्तान में हम लोग जब स्टडी कंप्लीट करते हैं तो स्टडी कंप्लीट करते साथ ही हम मोस्टली पाकिस्तान में जो लोग हैं वो एवरेज हम्बल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे ही हम पास आउट हुए हैं हमें कोई बाइज्जत रोजगार मिले, ताकि हमारी जो फैमिली हमारा वेट कर रही है, हम
उनके लिए कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान में चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरह एनालाइज किया जाता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इन चीज़ों को स्टूडेंट को जो बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। तो सेकंड है कि आप अगर फौरी तौर पे आप थोड़े स्टेबल है फाइनेंशियली, आपको कोई इशू नहीं है, तो स्टेज 3 स्कॉलरशिप, आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए परसू करें। स्कॉलरशिप की आजकल तो तमाम चीज़ें ऑनलाइन है। आप अपना डार्ट जो है जर्मनी की, वहां पे उनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। आप नेक्स्ट जापान की स्कॉलरशिप वहां पे अप्लाई करें। आप बर्सलारी जो कि टर्की की है, आप उनको विजिट करें। उसके बाद HEC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। आपको वहां पे आपकी कंसर्न स्कॉलरशिप जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपकी फॉरेन स्कॉलरशिप के चांसेस हैं। अगर वहां नहीं, आपको हायर स्टडी का थोड़ा सा है कि ये मेरी एजुकेशनल थोड़ी बैकग्राउंड जो है वो इनहेंस होना चाहिए, तो आप पाकिस्तान में भी किसी इदारे में आप अपना मास्टर्स परसू कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपनी जो 4 बेसिक चीजें हैं वो कवर कर ली कि पाकिस्तान में जो करियर्स है वो सिर्फ 4 तरह से है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि सब नंबर 1 जॉब, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट। नंबर 2 सेल्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 3 आप अपनी हायर स्टडीज परसू कर लें। अब यहाँ पे देखें, आपको मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, वो जो मैंने आपको प्राइवेट जॉब में बताया। हमारे मोस्टली इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में है ना, ये समझते हैं कि जी जो जॉब है ना, जो मेरा रोजगार है, जो मेरी एम्पावरमेंट है, उसने चल के मेरे घर आना है। मैंने अपने हॉस्टल में बैठ के, मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखनी है। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ नारान का गान के प्लान आउट करना है। बस मैंने इस तरह आवारा फिरना है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, उसने मेरे घर खुद आना है। यहाँ पे मैं यूईटी टेक्सला के ये एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और दोस्त भी हैं। मैं आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो कि किस तरह एफर्ट करनी पड़ती है। वो मेरा दोस्त जो है वो गोजरा का रिहायशी है। पास आउट होने के बाद 2018 से 19 तक वो गोजरा में अपने विलेज में रहा है, लेकिन वो फाइनली फेड अप हो गया है। उसने कहा कि यार मेरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा है, क्यों ना मैं अपने घर से निकलूं, कुछ करूं। ये एग्जाम्पल जो है, आपने एक मकौला सुना होगा, सफर कामयाबी की कुंजी है। सफर कामयाबी की कुंजी है। मेरा वो दोस्त, मेरा वो स्टूडेंट गोजरा से लाहौर आया है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त ने उसे क्या इंश्योर किया कि आपको मैं रिहाइश दूंगा, आपको मैं 3 टाइम्स फूड प्रोवाइड करूंगा, जबकि पे आपको कुछ नहीं मिलेगी। उस बंदे को शौक था, पैशन था, फिक्र थी कि मैंने अपने लाइफ में कुछ करना है। वो अपना गांव छोड़ के लाहौर आ गया विदाउट एनी अर्निंग। अब देखिए, ये है अल्लाह ताला की जात जो आपके लिए रास्ते पैदा करती है। जिस कंपनी में उस दोस्त ने उसे इंटर्नशिप पे रखा, जो दोस्त लाहौर उसे बुला चुका था, उसकी कुवैत में एक बड़ी अच्छी प्राइवेट जॉब हो गई। उसने वो कंपनी छोड़ दी। वो कंपनी छोड़ने के बाद अब उस कंपनी को एक इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की जरूरत थी। वही लड़का जो 2 माह से विदाउट अ सिंगल रुपी वहां पे इंटर्नशिप कर रहा था, जॉब कर रहा था, लर्न कर रहा था, उसी कंपनी ने उसे 1,20,000 रुपए पे जॉब पे रख लिया। उस बंदे को मैं कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 माह पहले मिलके आया हूँ। कंपनी ने उसे एक प्राइवेट कार भी दे दी है, उसे प्राइवेट रेजिडेंस भी दे दी है, और उसकी जो पे है वो भी इंक्रीज कर दी है। इस स्टोरी का जो मेन मकसद है आपके लिए लर्निंग है, वो यही है कि एसी के ठंडे कमरों में कामयाबी आपका इंतजार नहीं करती, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। इस स्टूडेंट की तरह 400 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ के लाहौर या किसी भी शहर में आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब अल्लाह की जात आपकी मेहनत को देखती है तो वो उसका रिवॉर्ड देती है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत मतलब लर्निंग वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं जो नंबर 1 है गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए किस तरह तैयारी करनी है। वहां ऑब्वियसली 100% मेरिट है। कोई बंदा अगर आपको ये चीज कहता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, या मेरे अंकल जो है वो मेजर जर्नल है, या जो MNA है वो मेरा चाचू है, टोटल बकवास करता है, आपको डी ट्रैक कर रहा है, वो नहीं चाहता आप लोग तरक्की करें।
तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करने का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। उस पे मैं आइस की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्दर एक सेमिनार रखें कि किस तरह हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या एफपीएससी में मेरिट पे अपनी सीट विदाउट एनी रेफरेंस सिक्योर कर सकते हैं। तो वो हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे, अभी जस्ट उसका ओवरव्यू था। अब आगे चलते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी चीज बताते हैं हमें कि इंसान जो है वो कामयाब किस तरह होता है। करियर उसने कोई भी अडॉप्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उसने अडॉप्ट कर लिया गवर्नमेंट जॉब, उसने अडॉप्ट कर लिया प्राइवेट सेक्टर, उसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ बिजनेस, उसने अडॉप्ट कर ली फॉरेन स्कॉलरशिप। अब वो अपना फैसला कर चुका है, वो अपने करियर को डिसाइड कर चुका है। अब उसने इसमें कामयाबी कैसे हासिल करनी है। सबसे अहम पॉइंट ये है ना कि सबसे पहले तो हमने एफएससी के बाद एक करियर अडॉप्ट कर लिया। अब जब हमने इंजीनियर बन जाना तो उसके बाद हमने एक करियर अडॉप्ट कर लिया। अब उसमें हमने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको एनालाइज किया हुआ है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में 3 T's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टीज को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 टी, टैलेंट। आपने अपनी क्लास में काफी लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, वो बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह ताला की जात ने उन्हें बहुत नवाजा हुआ है। वो लोग उनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, चीजों को मेमोराइज बड़ा अच्छा करते हैं, सिर्फ गो थ्रू करते हैं और उन्हें पूरा चैप्टर याद हो जाता है। ये है नंबर 1 टैलेंट, ये अल्लाह ताला की अता है। तो ऐसे लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपना फोकस क्लियर रखें, कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। नंबर 2 टी जो है वो है टेक्निक। आपके कुछ क्लास फेलोज आपने देखा होगा इतने टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनके पास ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो चीजों को छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाते हैं। क्या होता है, टैलेंट की कमी थी लेकिन उन्होंने उस टैलेंट की कमी को टेक्निक से ओवरकम कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ। टैलेंटेड लोग तो आगे निकल गए, लेकिन जिनमें टैलेंट की थोड़ी सी कमी थी उन्होंने उस चीज को टेक्निक से ओवरकम किया। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। अब नंबर 3 हमारे पास जो है टेम्परामेंट। एक स्टूडेंट आपने अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया, ना तो उसमें टैलेंट है ना उसमें कोई टेक्निक है, लेकिन उसमें मुस्तकिल मजाजी है, कंसिस्टेंसी है। उसने पहला टेस्ट दिया, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। चले इसे एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का उसने पहला टेस्ट दिया, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन उसने अपना फोकस क्लियर रखा, उसने अपने आप को बूस्ट अप किए रखा कि नहीं इट्स ओके, मेरे 47 मार्क्स आए हैं, जो जो चीजें मुझे भूलती थी उन्हें मैं ओवरकम करूंगा। ओवरकम करने के बाद मैं मजीद अपने मार्क्स को इंक्रीज करूंगा। पैनल ने जो जो चीजें मुझसे पूछी हैं मुझे नहीं आई, वो चीजें किस किताब में लिखी हैं, मैं वो किताब बाय करूंगा, उस किताब को मैं हाईलाइट करूंगा, उन पॉइंट्स को अपनी टेक्निक्स के साथ याद करूंगा। टैलेंट की भी कमी थी, टेक्निक की भी कमी थी, लेकिन वो आदमी, वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट लगा रहा, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, 5वें टेस्ट में वो कैंडिडेट, वो एस्पिरेंट सिलेक्ट हो गया। मैं आपको बाय नेम डिपार्टमेंट्स बता सकता हूं, उन स्टूडेंट्स के नाम बता सकता हूं। अभी रिसेंटली CNW पंजाब हाईवे में हमारे एक दोस्त जो कि 2012 में पास आउट हुए थे, लगातार उनके 14 रिटन टेस्ट क्लियर हुए थे सब डिविजनल ऑफिसर के। 2020 में उनकी सिलेक्शन हुई है, 8 साल बाद, 14 टेस्ट पास करने के बाद। तो ये अल्लाह ताला की जात है, किसी को जल्द नवाज देती है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो पॉइंट तीसरा टी था ना हमारे पास, टेम्परामेंट, उस एक कैंडिडेट को उसके टेम्परामेंट ने बहुत आगे ले गया, उसको कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई बिकॉज ऑफ हिज टेम्परामेंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें छोटी सी बात ये है कि कोई भी इंसान है ना, आप अभी जब आपको जो मैंने पॉइंट 1 बताया है कि अपने आप को आपने एनालाइज करना है। आपके फ्रेंड्स ने आपको चीजें आइडेंटिफाई कर दी, लेट्स अज्यूम किसी नाम से, अली आपकी यार स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी ये चीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब आपने इस चीज के अकॉर्डिंगली अपना प्रोफेशन ज्वाइन करना है। आप इसमें बहुत तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन इसी तरह आप डिजाइनिंग फील्ड, आपकी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है, आपने डिजाइनिंग की फील्ड चूज करनी है, फिर आप उसमें ज्यादा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो चीज आपका पैशन है। और दूसरी चीज,
कोई भी इंसान जब मेहनत करता है तो उसके सामने एक गोल होता है। सबसे पहले तसल्ली से बैठें, अपने रूम में बैठें, अपना एक गोल डिफाइन करें कि मेरी जिंदगी का ये गोल है। जब आपके सामने आपका एक गोल होगा कि यार ये मेरा एम है, मैंने इसको अचीव करना है, फिर उसको किस तरह अचीव करना है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यार मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अच्छा, आपने अपना एक एम डिफाइन कर लिया, उस गवर्नमेंट जॉब को किस तरह लिया जा सकता है। अच्छा, हमने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे हमें सर अली ने बताया था कि जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या एफपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब मिलती है। किस तरह मिलती है, वो ट्रिक जो है वो आपने सीखा। उसके लिए आपने डिफरेंट वीडियोस देखी, डिफरेंट सीनियर्स जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपने कांटेक्ट किया, उन्होंने आपको बुक आइडेंटिफाई की। देखिए ना, अब आपके सामने एक एम है, अब आप उस एम को परस्यू कर रहे हैं। इसकी एक और बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है, इंसान सुबह सुबह सर्द रातें हैं, हर तरफ धुंध है, इंसान फजर के वक्त 4:30 उठता है, ठंडे पानी से वजू करता है, वजू करने के बाद वो नमाज फजर अदा करता है। किस लिए? क्योंकि उसको एक सामने रिवॉर्ड नजर आ रहा होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है और इस सारी मेहनत के बाद मुझे अल्लाह ताला की जात जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। इसी तरह जो आपके ख्वाब है ना, वो आपको मतलब आपको ये बड़ी फेमस कोट है कि जो बंदा रात को बड़ी तसल्ली से सोता है उसके ख्वाब बड़े नहीं है, क्योंकि जो बड़े ख्वाब होते हैं वो इंसान को सोने नहीं देते। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि इन तमाम चीजों को आप फर्दर अपने करियर को अपना परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा एक और चीज है जो काफी लोग, आपने काफी सीनियर से भी सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इसकी बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है, हम सब लोग मुसलमान हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा को छोड़ा, हिजरत की, तो फर्स्ट हिजरी थी। फर्स्ट हिजरी को वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपने चचाजाद भाई, कजन्स, हर चीज छोड़ के अपने एम को लेके वो मदीना चले गए। ठीक 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, वो फाते मक्का बन के उसी गांव में, उसी मोहल्ले में, उन्हीं कजन्स के पास वापस आए। तो इस चीज को मैं करियर में बड़ा रिलेट करता हूं कि आप कोई भी करियर जब परस्यू करते हैं तो 10 ईयर्स, जब आपने अपनी लाइफ के 10 साल उस करियर को देने हैं, वो कोई भी करियर है, तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होंगे। ये चीज हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिली। किस तरह उन्होंने यकम हिजरी को अपना मदीना छोड़ा, 10 साल मेहनत करने के बाद वो वापस उसी मदीना में फातेह मक्का बन के वापस आए। इसी तरह आज आपने अपना गांव, अपना अपना शहर, अपने फ्यूचर के लिए छोड़ना है, मेहनत स्टार्ट करनी है। देखिए आप लोग अब काफी दूर दराज के, कोई राजनपुर, कोई लिया, कोई फैसलाबाद, हॉस्टल्स में है, घर से दूर है, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आपको बड़ी खुशी होगी कि जब आप लोग कामयाब हो के वापस अपने गांव में जाएंगे, अपनी फैमिली में जाएंगे, कितने वो लोग खुश होंगे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, ये हमारा घर छोड़ के दूर गए थे और अब माशाल्लाह ये सक्सेसफुल होके वापस हमारे पास वापस आए हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू कि किस तरह एक यंग एस्पिरेंट पाकिस्तान में रहते हुए अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकता है। वो मैंने 4 ऑप्शंस आपको बता दी हैं। हर ऑप्शन पे फर्दर एक लॉन्ग डिबेट है, उस डिबेट के लिए हम फर्दर सेमिनार्स करेंगे ताकि अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब परस्यू करना चाहता है वो किस तरह करना चाहता है। वैसे तो वीडियोस मेरे चैनल पे अली इजाज पीपीएससी, आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पे ये वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उस पर एक फर्दर डिबेट है। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं फर्दर डिबेट है। अगर आप फ्रीलांसिंग कुछ भी करना चाहते हैं तो ये डिटेल टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली आज के सेमिनार में आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि एक यंग एस्पिरेंट आफ्टर बीएससी किस तरह अपने करियर को परस्यू कर सकता है। मैं आईसीटी मैनेजमेंट या सरोज से रिक्वेस्ट करूंगा
कि स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर। जी अली जवेद, कैसे आंसर सेशन अपना स्टार्ट करें। Thank you very much, sir, for leading this webinar very briefly and concisely. Now it's time for the Q&A session. Anyone of you having any question, please raise your hand. I will allow you to speak one by one. Muhammad Abbas Zakir, you can speak now. Yes, Muhammad Abbas Zakir, you can speak now if you have any question. Zaim, if you have any question, please speak. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और मैंने 2019 में पास आउट हुआ हूँ। तो मेरा जो मेन गोल था वो गवर्नमेंट जॉब ही था। तो उसके लिए पहले शुरू में मुझे आइडिया नहीं था कि टेस्ट वगैरह की डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो मेरे जहन में यही था कि चलो जो हमने पढ़ा है वही थोड़ा बहुत आएगा, चलो टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसकी बेस पे पहले मैंने टेस्ट दिए, लेकिन मेरे टेस्ट क्लियर नहीं हुए। फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मैंने डिफरेंट बुक्स बाय की और मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो अभी 6-7 टेस्ट ऐसे हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन मेरा अभी जो मेन इशू है वो है इंटरव्यू। जो इंटरव्यू स्टेज है उसमें मुझे डिफिकल्टी आ रही है, मैं वो नहीं क्लियर कर पा रहा। तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें आप। अच्छा, आपका गुड नेम क्या था? मेरा नाम ज़हीम। अच्छा ज़हीम, आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। पंजाब, अच्छा। मुझे अभी भी याद है 2018 के जनवरी में मेरा SDO काफ का रिटर्न पास हुआ था। मेरे अब तक 7 रिटर्न पास हुए हैं। मेरी उनमें एलोकेशन नहीं हुई। ओवरऑल तो मेरे 10 से 11 टेस्ट पास हुए हैं, जिनमें से मेरी 3 से 4 में एलोकेशन हुई है, जबकि 7 से 8 टेस्ट में मेरी भी एलोकेशन नहीं हुई। यही तो वो जो बात मैंने आपको बताई थी ना, वो जो मैंने अपना 3 T's वाली मैंने बात की थी कि टेम्परामेंट। देखें, आपने खुद बताया कि पहले मेरा रिटर्न पास नहीं था होता, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अब रिटर्न पास होना शुरू हो गया, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। बिल्कुल मेरे साथ भी। देखिए जो इंटरव्यू है ना, आप खुद सोचें 1:5 है। अगर 5 सीट्स भी आई हैं तो 25 कैंडिडेट्स हैं। अब उन 25 जिन लोगों का रिटर्न पास हो चुका है वो 25 के 25 लोग डिजर्व करते हैं। अब पैनल में थोड़ा सा 5 लड़कों को रखना है। अब कौन से 5 लड़कों ने पैनल को इंप्रेस कर दिया है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा लक भी मैटर करती है। अब इस लक में ना थोड़ा सा मैं आपको अपनी जात का ट्रिक बताने लगा हूं। सबसे पहले आपने देखिए, आप एक स्टेज पार कर चुके हैं। आपके कई दोस्त ऐसे हैं जिनका रिटर्न ही पास नहीं होता, वो आपसे राब्ता करते होंगे। देखिए ना, सबसे पहले आपने नमाज शुरू करनी है। नमाज 5 वक्त की पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला की रहमत का जो फैक्टर है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। नंबर 2, जी इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं वालदैन की दुआएं, बहन भाइयों की दुआओं की थोड़ी सी कमी है कि वो इंटरव्यू में आपके दोस्त को 82 मार्क्स मिल रहे हैं और आपको 76 मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट नीचे आ रहा है। थोड़ा सा वालदैन की दुआओं पे फोकस करें। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क। अब आप अपने बैठे, अब एक पेपर पे अपनी चीजें, बिल्कुल मेरा जो ट्रिक मैं यूज करता रहा हूं, मैं गया इंटरव्यू दे के आया, मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। फिर मैंने उसका थोड़ा सा सीक्वेंस बना लिया। सबसे पहले मुझे मेंबर ने क्वेश्चन किया, फिर मुझे यूईटी के टीचर ने क्वेश्चन किया, फिर जो डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर आया, चीफ इंजीनियर आया हुआ था, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। अब मैंने तीनों का एक अपने माइंड में ओवरव्यू बना लिया, जिसे कहते हैं कि एक वीडियो बना ली। फिर उसको मैंने एनालाइज किया कि यार कहाँ मैंने गलत जवाब दिया है। पैनल ने मुझसे करप्शन पे बात की थी, तो यार ये करप्शन का जो मैंने जवाब दिया ना, ये टू दी पॉइंट नहीं था। देखिए, कहीं ना कहीं पैनल आपकी इंटेग्रिटी,
जो 25 लोग पैनल के सामने मौजूद है वो 25 डिजर्व करते हैं। सिर्फ इफ एंड बट और थोड़ा सा लक, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। स्टे कंसिस्टेंट। मुझे नजर आ रहा है कि चौथी या पांचवी जो अगली अटेम्प्ट है उसमें आपकी सिलेक्शन हो जानी है। सिर्फ अपने जो 4 आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं ना, उन चारों इंटरव्यूज को बैठ के एनालाइज करें। और कहाँ पे, आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। मुझे उन्होंने एक दफा क्वेश्चन किया कि क्या पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए? आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन्हें कह दिया जी नहीं, ये यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा जी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हैं एज कंपेयर टू क्वालिटी। उन्होंने कहा अच्छा। बात आगे बढ़ती बढ़ती मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन जब मैं घर आया मैंने सीनियर्स के साथ डिस्कशन की तो देखे उन्होंने कहा कि यार ये आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। किस सेंस में? यूईटी की बात करें, यूईटी लाहौर में 250 स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यूईटी टेक्सला में 250-300 कर सकते हैं। तो जो बाकी इतने लोग सिविल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं वो कहाँ जाएं? यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भरमार है। बेसिकली यहाँ पे आंसर ये बनता था कि सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो कोर्स कंटेंट यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला में पढ़ाया जाता है वही प्राइवेट अदारों में पढ़ाया जाए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल स्ट्रिक्टली तमाम चीजों को फॉलो करें ताकि जो स्टूडेंट यूईटी टेक्सला में प्रोड्यूस हो रहा है वही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या यूएमटी में प्रोड्यूस हो। ये था इसका प्रॉपर टेक्निकल आंसर। तो इस तरह आप अपनी चीजों को एनालाइज करें। कहीं ना कहीं आप ये कुछ चीजें जो है ना पैनल को इंप्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे उम्मीद है अगले या उससे अगले टेस्ट में आपकी सिलेक्शन हो जानी है और आपने मुझे टेक्स्ट करना है कि सर आपके बताए हुए रोड मैप को मैंने फॉलो किया है, चीजों को एनालाइज किया है, अपनी जो आंसर स्किल है उसको इंप्रूव किया है, सर मेरी सिलेक्शन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंजीनियर हसनैन तालिब, आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हसनैन बोलिए। हसनैन तालिब, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं रिसेंटली अभी मैंने एडमिशन लिया था मास्टर्स में, साल हो गया मुझे। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हेनेवर हम लोग तैयारी करने का सोचते हैं पीपीएससी की या फिर एफपीएससी की, तो हम लोगों को जब हम इस स्टार्ट करते हैं तो हमें किताबें बेशुमार मिलती हैं, कुछ बुक्स होती हैं वो जो लिखी होती हैं वो ऑथर्स इंडियन होते हैं, कुछ हमारे कंट्री के ऑथर्स होते हैं। बाद लोग कहते हैं कि आपका जो आपने 4 ईयर में सिलेबस पढ़ा है उसी को आप दोबारा से देखें। तो वो जब इतनी सारा कुछ हमारे पास आ जाता है, यूट्यूब पे वीडियोस भी बंदा देख लेता है बेशुमार किस्म की, उसके बाद एक बंदे को समझ नहीं आती कि वो अपना सिलेबस पढ़े या फिर वो इंडियन ऑथर की क्वेश्चन समझ चुका हूं, एमसीक्यूज हैं। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है? अभी आप पास आउट हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं न्यू वीडियो रिलीज कर रहा हूँ अपने चैनल पे अली इजाज पीपीएससी पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसडीओ इरिगेशन पंजाब में 21 सीट्स आ चुकी हैं। उस वीडियो को आपने फॉलो करना है। नंबर 2, आपने यूट्यूब पे मेरा चैनल पे आपने लिखना है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी रिटन एग्जाम बाय अली इजाज। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए कंप्लीट वीडियो है, ये भी आपने देखनी है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपने किस तरह चीजों को लेके चलना है। आप क्या करते हैं, तमाम चीजों को मैसअप कर देते हैं और आप कहते हैं कि 2 माह के अंदर मेरी तैयारी हो जाए। कंसिस्टेंट रहे, साल 1.5-2 साल। यार मेरी खुद की सिलेक्शन 11वें इंटरव्यू पे हुई है, फिर 12वें पे हुई, फिर 13वें पे हुई। अब मैं क्या करता, जब मेरा 5वां इंटरव्यू फेल हो गया था तो मैं स्कॉलरशिप लेके इंग्लैंड चले जाता। कंसिस्टेंट रहना है। आपने अब ट्रिक क्या यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी लोगों ने भी क्वेश्चन पूछने हैं। आपने एन बासिफ की सर्वे की बुक ले ली, आपने सर्वे की स्लाइड्स ले ली, आपने इंडियन ऑथर जो खुरमी एंड गुप्ता है उसका सर्वे ले लिया,
आपने ऑनलाइन एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स, उसके सर्वे के एमसीक्यूज ले ले। अब आपने सबसे पहले 3 दिन में एनएन बासी को खत्म किया, अगले 3 दिन आपने यूईटी की स्लाइड्स खत्म की, अगले 3 दिन आपने इंडिया बिक्स के एमसीक्यूज कंप्लीट किए, अगले 3 दिन आपने खुरमी एंड गुप्ता को कंप्लीट किया। टोटल आपके 12 डेज हो गए हैं। 12 डेज आपने लगातार सर्वे को दिए हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लाइफ टाइम आपको सर्वे इंजीनियरिंग कभी भूलने नहीं लगा। यही रूल आपने इरिगेशन पे अप्लाई करना है, यही रूल आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे अप्लाई करना है। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, थोड़ा सा सर्वे पढ़ लिया, थोड़ी सी इरिगेशन पढ़ ली, ऐसे नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप सर्वे के तमाम एस्पेक्ट क्लियर हो गए, सर्वे की किताबें साइड पे रखी, अब आपको लाइफ टाइम सर्वे नहीं भूलने लगा। ये है ट्रिक टू क्लिक पीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। जी आरफा फारूक, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, I want to ask, what is the role of academy in preparation of competitive exams? अरफा, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, एकेडमी को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना। अगर आप बात करें पीएमएस की, अगर आप बात करें सीएसएस की, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 1 माह 2 माह 3 माह एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। एकेडमी में बेसिकली आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इन टच चीजों का आइडिया होता है। मैंने बुक सिलेक्शन कौन सी करनी है, मैंने किस ऑथर के। अब अगर सीएसएस की भी बात कर लें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बुक डिपो है, मैं खुद वहां पे जा चुका हूँ लाहौर में, वहां पे तकरीबन 400 ऑथर्स की एक ही सब्जेक्ट पे बुक मौजूद है। तो अब हमने किस ऑथर की लेनी है, तो एकेडमी में बेसिकली आपको आइडिया होता है कि हमने वाइजली किस तरह अपना ऑथर सिलेक्ट करना है फॉर बुक्स। अब आते हैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर। बीइंग अ सिविल इंजीनियर पूरे पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है, सिर्फ कुछ सोर्सेज हैं लाइक सीनियर्स, लाइक यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स हैं जिनमें मेरा चैनल भी है, इंजीनियर अली इजाज पीपीएससी। सिविल इंजीनियर को एकेडमी की कोई जरूरत नहीं है, वो जस्ट अपने सीनियर का बताया हुआ रोड मैप फॉलो कर ले। और जो मैंने आगे एक स्टूडेंट को ट्रिक बताया है, हर सब्जेक्ट को 10 से 15 दिन वाइजली देने हैं, स्मार्टली देने हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट को साइड पे रख देना है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सब डिविजनल की सिलेक्शन के लिए ये रोड मैप इनफ है। एकेडमी एक तो नंबर 1 अवेलेबल नहीं है, नंबर 2 उसकी जरूरत नहीं है फॉर सिविल इंजीनियर टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। बाकी आपने जो बीएससी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कोई भी एकेडमी अपने सीनियर्स की, अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है एकेडमी का रोल इन डिफरेंट क्राइटेरियाज। Thank you so much, sir. I get it. जी भाई आखिर आप शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि बेसिकली आई हैव 2 क्वेश्चंस। मेरी अपनी जो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से, लाइक माय फादर इज़ अ सिविल इंजीनियर एंड मैं भी सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट इज़ लाइक प्रेफरेबल कि या तो मैं अपने बाबा की कंपनी में जॉब उधर ही लाइक कंटिन्यू करूँ, या मैं स्कॉलरशिप के लिए लाइक बाहर चली जाऊँ, लाइक मास्टर्स के लिए बाहर चली जाऊँ, या तो लाइक 2 ऑप्शंस हैं विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सी करनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में आइदर गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स में आपको इतना बेनिफिट मिलता नहीं है, तो आइदर या तो बंदा जॉब करे तो बाहर जाके करे, या मैं अपने बाबा की कंपनी में कर लूँ, या मैं मास्टर्स के लिए बाहर चली जाऊँ। बिकॉज लाइक व्हेन यू आर डूइंग मास्टर्स सो यू कैन ऑल्सो लाइक उधर आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन के डिग्री के ड्यूरिंग डिग्री इज देयर समथिंग दैट यू कैन डू टू लाइक मेक योर स्कॉलरशिप या पर्सनल लेटर इतना अच्छा कि लाइक आपको मतलब वो थोड़ा सी रीड आउट करें और आपको मिल जाए, लाइक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बिकॉज आपका ऑलरेडी बीएस का दौरान आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब कुछ हो। सबसे पहले तो पाकिस्तान में फीमेल्स के लिए जो है ना, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना सूटेबल नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में इतना ग्रो नहीं किया, सिर्फ चंद कंपनीज ग्रो की हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। ओवरऑल इतनी ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है। नंबर 2, गवर्नमेंट सिनेरियो में फीमेल्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। हमारे साथ जो वापडा में फीमेल सिलेक्ट हुई हैं, इरीगेशन में सिलेक्ट हुई हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुई हैं, पंजाब हाईवे में सिलेक्ट हुई हैं, वो तमाम फीमेल्स को डिजाइन ऑफिस में लगाया गया है, रिसर्च ऑफिस में लगाया गया है। क्योंकि रिसर्च ऑफिस में उनका ऑब्वियसली एक फीमेल के लिए फील्ड में
compete करना थोड़ा सा टफ है। नंबर 2, आपने बताया कि आपके बाबा की ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्रेफरेबली यही है कि आप अपने बाबा की कंपनी को ज्वाइन करें। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग है तो उस कंपनी में अपनी चीज़ों को ग्रो करते करते आप फॉरेन स्कॉलरशिप अडॉप्ट करें। मास्टर्स के करने के बाद वापस अपनी कंपनी में आए और उस कंपनी को आप एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं। माइट बी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब आपके लिए प्रेफरेबल यही है कि आप ऑलरेडी देखिए, गवर्नमेंट जॉब में तो वो स्टूडेंट आता है जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अभी उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं है, वो चाहता है कि यार मैं मेहनत करूं और मैं 1,10,000 रुपए की गवर्नमेंट जॉब अडॉप्ट करूं ताकि मैं जीरो से 1,10,000 पे चला जाऊं, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। उसके पास जो प्लेटफॉर्म था ग्रो करने का वो जॉब थी। आपके पास ऑलरेडी आपके वालिद का कंपनी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उस प्लेटफॉर्म को एज अ जंपिंग पैड यूज करें, फॉरेन स्कॉलरशिप लें, उस कंपनी को ग्रो करके इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। आपके लिए ये ऑप्शन बड़ी अच्छी है। दूसरा आपका पार्ट था साथ साथ, देखिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यूईटी मींस बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की स्लाइड्स बहुत जरूरी हैं। आपने 8 सेमेस्टर की स्लाइड आपकी फिंगर टिप्स पे है। अब आपने पास आउट होने के बाद जो उनको टाइम देना था आपने वो सेव कर लिया। अब आपने वो खुरमी एंड गुप्ता को पढ़ना है, उसमें भी आधी से ज्यादा चीजें आप स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। फिर आपने वो लैब मैनुअल्स पढ़ने हैं। आप ऑलरेडी 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में अपनी ग्रुप स्टडी में वो तमाम लैब मैनुअल्स पढ़ चुके हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने पास आउट होने के बाद सोचना था कि यार मैंने करना क्या है, मैंने किस डायरेक्शन में जाना था, उसको मैं दूंगा 12 मार्क्स आउट ऑफ 100। और आप जैसे कैंडिडेट को जिसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैंने लाइफ में करना क्या है, उसको मैं आउट ऑफ 100 95 मार्क्स दूंगा। उसे डायरेक्शन भी पता है, उसे प्लेटफॉर्म का भी पता है, उसे किस सोर्स से तैयारी करनी है वो भी पता है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अहमद इजाज, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अहमद इजाज। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अहमद इजाज फ्रॉम 19 सेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बात की है कि मैंने इंटरव्यूज काफ़ी दिए, काफ़ी टेस्ट दिए, तो इस अरसे के दौरान आपने कोई जॉब वगैरह की है? क्योंकि हमारी फैमिलीज तो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम राइट आफ्टर डिग्री हम कोई अर्निंग करें, लेकिन ये आपने जैसे बताया कि मुझे काफ़ी देर बाद सिलेक्शन हुई, तो ये थोड़ा सा बता दें। इसमें मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि थोड़ी सी ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये चीज मैं अपने सेमिनार में बता चुका हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको, वो जो मेरा दोस्त गोजरा से ट्रैवल करके लाहौर आया और इस वक्त एक रेप्यूटेड कंपनी में वो एक अच्छी जॉब कर रहा है, आपको वो वाली जो टेक्निक है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। आपको चाहिए अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें। लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करें। सबसे पहले तो आप अपना गोल डिसाइड करें ना। लेट्स अज्यूम कि आपका गोल है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। वो गवर्नमेंट जॉब किस तरह लेनी है, वो तमाम चीजें आपने मेरे से ले ली हैं। ट्रिक टू क्लिक पीपीएससी, वो चीजें आपकी कबर्ड में पड़ी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपने गांव में अपने विलेज में फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है। उसके लिए आप कोई ऐसी कंपनी अडॉप्ट करें जिसमें आप अपना टाइम मैनेज कर सकें। अल्लाह ताला की ज़ात मुझ पे बड़ी मेहरबान थी और है भी। मुझे इरिगेशन में जो मेरी पहली सिलेक्शन हुई उसमें मुझे इतना टाइम मिल जाता था कि मैं फर्दर अपना जो गोल था कि यार ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, अब मुझे इसमें जाना चाहिए, यार इस डिपार्टमेंट में मेरी डिजायर चीजें नहीं है, मुझे इसमें जाना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वो टाइम मैनेजमेंट मुझे अता की, जिसकी वजह से मैं, लेट्स अज्यूम आपने कोई ऐसी जॉब अडॉप्ट की जिसमें आप सुबह 8 बजे जाते हैं, 3 बजे वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, शाम 6 बजे आपने अपनी सिविल इंजीनियरिंग का जो डाटा है उसे निकाला, रात 11 बजे तक पढ़ा, लगातार 5 घंटे आपने टाइम को मैनेज किया। इस तरह आपने डे टाइम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की बैक टू होम, और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहे। एक चीज यार मैं थोड़ी क्लियर कर दूं आप लोगों को, लाइफ इतनी आसान नहीं है।
जितनी हम लोग समझ चुके हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम लोग अपने वालिदैन, देखिए ये कोई अचीवमेंट नहीं है। यूट्यूब चैनल पे मेरी एक बड़ी अच्छी वीडियो है, वो आपने देखनी है जाके। एक स्टूडेंट ने मुझे यही क्वेश्चन किया कि सर मैंने नौकरी वगैरह करके क्या करना है, मेरे वालिद साहब के पास तो खुला पैसा है। वो उसका वालिद है, आपका वालिद नहीं है। आपका वालिद वही है जो दिन रात मेहनत करके, जिसने आपकी फीसें दी हैं, जिसका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम आपकी जॉब है, आपकी प्राइवेट बिजनेस है। तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। वो जो आपका बर्गर दोस्त है उसको फॉलो नहीं करना, अपने गोल को फॉलो करना है, और जो भी आपका एम है टाइम मैनेजमेंट के साथ उसे अचीव करना है। अगला क्वेश्चन कोई पूछ ले, अगर मैं क्लियर कर चुका हूं तो। जी मरीम इमरान, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मरीम इमरान, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, क्वेश्चन कीजिए अपना। हाँ जी, मैं करंटली 7th सेमेस्टर में हूँ यूईटी लाहौर के, और मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं आगे डिज़ाइन जॉब को परस्यू करना चाहती हूँ, तो यूईटी में डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं, ईटैब, सेव, चैटफ्लो, ये एसेट सिखाए नहीं जाते। सब कहते हैं यूट्यूब से सीख लो, यूट्यूब के चैनल्स हैं। यूट्यूब बहुत बेसिक और बिगिनर्स का सिखाता है, एडवांस नहीं सिखाता, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं आती। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल वो स्टेबिलिटी लाना चाहती हूँ अपने में, तो वो मैं कहाँ से उसको एक्सप्लोर करूँ? और आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में? लाइक आपने ये तो आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, उस सॉफ्टवेयर को आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, उसका कोई आपके माइंड में चीज है? बस यही है कि डिजाइन जॉब को स्ट्रक्चर एनालिसिस मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ अब कि सबसे हाँ, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज तो उनकी ठीक है कि मैं खुद यूईटी लाहौर में अभी मास्टर्स का स्टूडेंट पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया कि हमें है क्रास जो है ना वाटर का बड़ा बेसिक है, डॉक्टर हबीब साहब हमें पढ़ाते थे, वो बड़ा हमें बेसिक लेवल का सिखाया गया था। वहां पे हमने अपनी एक्सरसाइज भी की थी, बट अभी तक मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं हो चुका। इवन मैं वापडा में जॉब कर रहा हूँ, और हमारा रिवर मॉडलिंग का वो बेसिक जो है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है। अब इसका हल ये है कि कोई अपना जो सीनियर है आपका, जो पहले ये चीज अचीव कर चुका है, जिसे उस सॉफ्टवेयर पे अबूर हासिल है, आपका वही टीचर, जो मुझे आइडिया नहीं है कौन आपको, रिजवान साहब या कौन ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनसे ये चीज लर्न करें एक्स्ट्रा टाइम में। यूट्यूब से आपने बेसिक सीख चुके हैं, अब उसमें कोई ना कोई उसकी एक्सरसाइज, कोई ना कोई आप उसका कोई ना कोई वर्किंग जो है ना उसकी करते रहे। सीखते सीखते आप उस चीज पे आप मास्टर्स हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अब मुझे नहीं आइडिया, मुझे खुद इस चीज का आइडिया नहीं है। इवन मैं खुद नहीं जानता कि कौन सी एकेडमी अवेलेबल है, कोई एकेडमी अवेलेबल नहीं है जो आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाए। तो यूट्यूब के अलावा आपका सीनियर या आपका कोई भी, लाइक नेस्ट पार्क में ट्राई करें, इवन वापडा में ट्राई करें, सीडीओ सेंट्रल डिजाइन ऑफिस है, आप नेस्ट पार्क है, डेस्कॉन है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनमें डिजाइन ऑफिस मौजूद है, वहां पे डिजाइनिंग का काम होता है, वहां पे कोई सीनियर तलाश करें, उस सीनियर से आप ये सॉफ्टवेयर सीख लें। नंबर 2, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, लेट्स अज्यूम आपने तैयारी की, आपने वापडा को ज्वाइन कर लिया, अब वापडा का लाहौर में सेंट्रल डिजाइन ऑफिस है, आपने अपनी डिजाइनिंग के शौक को पूरा करने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट, हमारी जो कोलीग्स हैं फीमेल, उन सबकी अपॉइंटमेंट सीडीओ में हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फील्ड जॉब थोड़ी टफ होती है। तो आपकी सीडीओ में जॉब भी हो चुकी है, और अब आप वहां पे अपना जो एम है उसको परसू भी कर रहे हैं, और आपका वो जो सॉफ्टवेयर है उसे सीख भी रहे हैं। तो ये मेरा आपसे एक दो एडवाइस है। बाकी एकेडमी कौन सी है वो मेरी नजर में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जी शहरियार इरफान, हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक ठाक, आप बोलिए। सर मेरा नाम शहरियार इरफान है। अभी मैं यूईटी टेक्सला में स्टडी कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर। और बेसिकली मैंने डिप्लोमा किया पहले सोल कॉलेज से। अभी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, और मेरे वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। इवन कि मुझे सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में रोड्स और बिल्डिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लाइक पहले मैंने इरिगेशन का दिया था टेस्ट,
जब मैंने डिप्लोमा किया था कोविड में, तो मैंने पास आउट भी कर लिया था। फिर मेरा इधर एडमिशन हो गया यूटी टेक्सला में, फिर मैंने इंटरव्यू के लिए मैं नहीं गया था वहाँ पे। तो अब CNW डिपार्टमेंट है, तो मैं लाइक खुरमियन गुप्ता उन्होंने बुक रिकमेंडेड की है, SDOs के लिए भी होती है, हमारे लिए भी होती है। तो मैं ये पूछना था कि अब उसको मैंने रीड आउट कर लिया, उसके अलावा कोई बुक है जैसा आपने जब आपने SDO के लिए अप्लाई किया था, तो आपने कौन कौन सी बुक्स रीड आउट की थी जो मेरे नॉलेज में इंक्रीज कर सके, ताकि मैं उसमें इंटरव्यू के लिए भी अटेम्प्ट कर सकूं उसको, और साथ इसको CNW डिपार्टमेंट में इसको अटेम्प्ट कर सकूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें 250 प्लस सीट्स आई हुई हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। खैर यार, सबसे पहले तो आप अभी सेमिनार के बाद YouTube पे जाएं, वहाँ पे लिखें अली इजाज PPSC, मेरा चैनल ओपन होगा। उस चैनल में 4 दिन पहले मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर CNW सब इंजीनियर मैंने वीडियो अपलोड की है, 15 मिनट की है। उस वीडियो में आपकी तमाम चीज़ें एक्सप्लेन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी BSc सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के आप डिप्लोमा बेस पे 14 ग्रेड में अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के वो जॉब लें। देखें, जल्दबाजी ना करें। आप डिप्लोमा बेस पे वो जॉब ले लेंगे, आपकी पे पाकिस्तान में 35,000 रुपए लग जाएगी, जबकि SDO की पे 1,10,000 रुपए है। डिप्लोमा की कोई प्रमोशन नहीं है, लाइफ टाइम आप 14वें ग्रेड में ही रहेंगे। जबकि अगर आप SDO आफ्टर पासिंग BSc सिविल इंजीनियरिंग आप किसी भी डिपार्टमेंट में SDO लगते हैं, 20 साल बाद आप चीफ इंजीनियर बन जाओगे। अपनी BSc सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो, जल्दबाजी ना करो, फ्यूचर में सीट्स आती रहेंगी। जो मेहनती लड़का होता है ना, औकाफ डिपार्टमेंट में 2 सीट्स आई थी। अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन कर लो, मेरा रिटर्न क्लियर था। सीटों को छोड़ दो, 200 आई हैं, 250 आई हैं या 5 आई हैं। अपनी BSc सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस लो और 17 ग्रेड के लिए मेहनत करो। आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर सब इंजीनियर। मुझे नहीं पता आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है या नहीं, लेकिन अपनी BSc सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो और मेरी वीडियो देखो, उसमें वो चीजें एक्सप्लेन है। ओके सर, मैं जॉब मेरे घर वालों जॉब तो करनी नहीं देनी और फाइनेंशियल मुझे कोई इशू नहीं है एक्चुअली बस मेरे। ठीक है, आप BSc सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो। आपने जब 2022 में 23 में पास आउट होना है, तब अगेन सीट्स आएंगी SDO की 17 स्केल की, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। ऑफिसर बनना है यार, ऑफिसर बनो, मेहनत करो। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी सरोज भाई, आप उसमें कर लें अपना। अच्छा अली भाई, मुझे अभी माइक का इशू है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब जब हम इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो उधर हम ये बताना जरूरी होता है कि हमने MSP किया है या MSP कर रहे हैं इस फील्ड में या उस फील्ड में। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब अगर हम ये वाली चीज बताते हैं तो शायद उनका परसेप्शन है या किसी सीनियर ने बताया है कि उनसे इंटरव्यू में फिर वो MS लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जॉब आई है BSc सिविल इंजीनियरिंग बेस, कोशिश करें कि आप BSc सिविल इंजीनियरिंग ही बताएं। लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, देखिए पॉइंट वही है, अगर उन्होंने आपसे मास्टर्स का कोई क्वेश्चन किया है, तो अगर आप पढ़ के मास्टर्स कर रहे हैं ना, सिर्फ वीकेंड पे क्लासें ली और डिग्री हाथ में ले ली, फिर तो वो पैनल जो है वो ठीक है। अगर आप उन्हें MSc भी बताते हैं, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस किया उनका आंसर दें, सिंपल इज दैट। उन्होंने जो क्वेश्चन किया, आप अगर पढ़ के गए हैं तो आप MSc बताएं, आप उन्हें PhD बताएं, आप उन्हें BSc बताएं। ये मैं बताऊं, हर इंसान की अपनी डेस्टिनेशन होती है। अगर आप मेरी जात की बात करें तो मैं तकरीबन उन्हें 5 इंटरव्यूज में बता चुका हूं, आई एम परसुइंग माई MSc हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम UET लाहौर। उन्होंने फिर मुझसे वाटर रिलेटेड क्वेश्चन किए, मुझे आते थे। इसी तरह आपने जो बताया है जी मैं ट्रांसपोर्टेशन में MSc कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को पढ़ के जाएं, दैट्स इट। और सीनियर्स की बातों को सुने, उनको एनालाइज करें, अगर तो वो आपके लिए सूटेबल है फिर माने। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि ये MSc बताएगा, इससे पैनल क्वेश्चन पूछेगा और इसे नहीं आएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ आपने उन्हें एमएससी बताना है, आपने एमएससी के जो पढ़ा है वो पढ़ के जाना है। उन्होंने जो आपसे 8 क्वेश्चन करने हैं, आपको आ जाने हैं, आपकी सिलेक्शन हो जानी है। आपके सीनियर की अपनी किस्मत है, आपकी अपनी किस्मत है। ज्यादा फोकस मैं यही कहूंगा, मेहनत पे करें, अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करने पे करें। अली जवेद सालिया काफी देर से मतलब उनका हैंड रेज है, उनसे पूछ लें आप। अली जवेद। जी सर, मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। सारे आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। यार एडमिन अपराधी यार, हमें गलत किया यार। शायद वो चले गए हैं। शाह आलम। शाह आलम, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, आप ऑन करके पूछ सकते हो। शाह आलम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई ये पूछना था कि मास्टर बेहतर है कि नौकरी बेहतर है? तो अगर मास्टर करते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए कुछ कंडीशन बेहतर होती हैं कि नहीं? मैं समझा नहीं, आपकी आवाज कट के आई है मुझे। अली भाई ये पूछा कि मास्टर बेहतर है कि नौकरी करें, मास्टर के क्या फायदे हैं, और अगर मास्टर अच्छा, कर लिया आपको मैं बता, यहाँ पे वही जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर करती है। अगर तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो आप अपना मास्टर्स परस्यू करें, साथ में जो भी आपने प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट कंसल्टेंट फर्म बनानी है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, उस पर फोकस करें, साथ में अपना मास्टर्स करें। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो अपना मास्टर्स भी करें। लेट्स टॉक विद एन एग्जांपल। आप एमएससी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूईटी टेक्सला से, यूईटी टेक्सला के हॉस्टल में आप रहते हैं, इवनिंग में क्लासें ली, सुबह सारा दिन आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की, साथ साथ आपका एमएससी भी कंप्लीट हो रही है, साथ ही आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी कंप्लीट हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के इश्यूज हैं तो फौरन जॉब करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के इशू नहीं है तो जॉब भी करें, साथ में मास्टर्स भी परस्यू करें। सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें, उसके बाद फैसला करें। ये भी घर वाले दोनों तरीकों से राजी हैं, लेकिन ये पूछना था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ फायदा करेगी मास्टर? बिल्कुल, देखें आप, लेट्स अज्यूम आप 20 लोग सिलेक्ट, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी ये जो तालीम होती है ना, ये इंसान के जरूर काम आती है कभी ना कभी। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। PCRWR, ये जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरी है लाहौर में, इनके जो अभी डीजी हैं वो 1992 में उन्होंने फॉरेन पीएचडी कर ली। उस वक्त जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियर थे वो सारे सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर थे, जबकि वो एक जो कैंडिडेट था उसमें पोटेंशियल थी। पहले उसने मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद वो पीएचडी कर आया, लेकिन वो जॉब वही कर रहा था जो बाकी कर रहे थे। यानी पीएचडी वाला कैंडिडेट और बीएससी वाला कैंडिडेट दोनों इक्वल जॉब कर रहे थे, इक्वल पे थी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा साइकिल घुमाया कि एक नया इदारा क्रिएट हुआ 2006 में। उसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि ऐसा एग्रीकल्चर इंजीनियर हो जिसने पीएचडी की हो। पूरे पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर इंजीनियर नहीं था, वो वाहिद बंदा उसका डीजी बन गया। अब क्या हुआ, बाकी जितने बैच फेलो थे कोई 18 ग्रेड में था, कोई 19 ग्रेड में था, जबकि उनका वही दोस्त अपनी तालीमी काबिलियत की वजह से अल्लाह ताला की जात ने उसे उसी डिपार्टमेंट का डीजी बना दिया। तो ये जो आपकी एमएससी है, ये कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट में ये अचानक एक विंग बन जाता है। वहां पे उस विंग में वो कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट्स के लोग चाहिए जिनका 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, प्लस उन्होंने बीएससी एमएससी की हो। तो आपके जो बाकी बैच फेलो होंगे वो तो पीछे रह गए। सिर्फ आपने एमएससी की हुई है, आपने पीएचडी की हुई है, आप अपने दोस्तों से 10 ईयर आगे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको क्लियर कर दिया विद एग्जांपल। शुक्रिया अली भाई। अली भाई बस क्वेश्चन इनफ नहीं है या जिस तरह आप बोलें? मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जूनियर्स को गाइड करना। मैंने अपना फेसबुक पेज भी इसीलिए बनाया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाया है। तो मैं आप सब जूनियर्स को ये सजेस्ट करूंगा, अभी जब सेमिनार एंड होगा, सिविल नॉलेज फैक्ट्री
मेरे 70,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, उस पेज को भी लाइक करें, मेरा यूट्यूब पे सर्च करें अली इजाज PPSC या इंजीनियर अली इजाज। ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स का चैनल है जहां पे सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की रहनुमाई की जाती है। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, आई एम कंफर्टेबल। लिजवेट अगले क्वेश्चंस आप हैं जिनके हैंड रेज हैं उनके आप ले लें क्वेश्चंस। मुझे कोई इशू नहीं है, कोई भी जूनियर पूछना चाहता है, कोई भी चीज पूछना चाहता है, आई एम अवेलेबल। हाँ इकरा अब्बासी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप पोस्ट में इकरा अब्बासी। इकरा अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई वांट आस्क अबाउट कि मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग के बाद लोग कहते हैं कि गर्ल्स के लिए इट्स बेटर टू डू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सो मैं पूछना चाह रही थी कि इज इट बेटर कि हम लोग लाइक विद स्कोप, इज इट बेटर कि हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ही करें या फिर कोई और फील्ड्स भी हैं जो इतनी डाइवर्स हो चुकी हैं जो हम लोग लाइक गर्ल्स को अडॉप्ट कर सकती हैं एंड दे कैन डू मतलब लाइक प्रोग्रेस इन देम। अब बात करते हैं कि वही जो बात मैं पहले कर चुका हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक ऐसी मास्टर्स की डिग्री है या ओवरऑल ऐसा करियर है कि इसके लिए आपको मेरा ख्याल है एक सिंगल रूम चाहिए। आप एक सिंगल रूम को वेल इक्विप्ड करें, आप उसमें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उन सॉफ्टवेयर पे ग्रिप अबूर हासिल करें, आप एक रूम में बैठ के अपना बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये बात सच है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मार्केट बहुत वास्ट है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इस चीज की अवेयरनेस मिली है तो अब इसमें सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियर की, उसके हमारे पास बड़े शॉर्ट लोग मौजूद, बड़े कम लोग मौजूद हैं। इवन जब लेक्चरशिप या इन चीज़ों के लिए इवन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर आशिक खरल साहब अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, यूईटी लाहौर के टीचर। उन्होंने मास्टर्स किया था सेडिमेंटेशन, PhD की थी इन रिवर सेडिमेंटेशन। अब वो बड़े अच्छे टीचर हैं, कई दफ़ा उनसे मुलाकात अब भी होती है, कुछ दिन पहले भी हुई है। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में उनके बाद रिवर सेडिमेंट जो होता है उस पर अभी तक काम ही नहीं हुआ। दैट मीन्स वो सारी फील्ड खाली है। तो आपने अगर स्ट्रक्चर पे फोकस कर लिया, उसकी एक जो बेसिकली इसका जो एट द एंड मैं बताऊं यही है, पोटेंशियल आपके अंदर है। मार्केट में 100 स्ट्रक्चर इंजीनियर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उनमें से टॉप कर गई है, आपकी जो स्किल्स हैं उनमें से ज्यादा पॉलिश हो गई हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे। ये इवन आप चाहे आपने स्ट्रक्चरल कर ली है, चाहे आपने वाटर इंजीनियरिंग कर ली है, चाहे आपने जियो टेक्निकल कर ली है, पोटेंशियल आपके अंदर है, फील्ड के अंदर नहीं है। ये मेरा मानना है, इससे कुछ लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जी साथ बिलाल तबस्सुम, अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है। As we have two in army. My question is that how many attempts you have regarding government job like PPSC etc. as we have two in army. मेरे पास इस वक्त अगर बात करें ना, इस वक्त मेरे पास 22 PPSC ओरिजिनल पास पेपर्स मौजूद हैं जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। वो किस तरह मैं बनाता था, जब हम टेस्ट दे के बाहर निकलते थे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग से, तो मैंने अपने पेज पे पोस्ट कर देता था, काइंडली पोस्ट MCQs हेयर। वहां पे तकरीबन 500 से 600 कमेंट्स हो जाते थे। तमाम एस्पिरेंट 5000 6000 लोग जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो कमेंट्स कर देते थे। उन कमेंट्स में से मैं पेपर को कंपाइल कर लेता था। इस वक्त मेरे पास 22 पास्ट पेपर हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं 22 टाइम्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, NTS में, PTS में अपीयर हुआ हूँ। बाकी जो आपने मेरा ख्याल सेकंड क्वेश्चन है कि आर्मी में मैं अपीयर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हमें जब हम उस स्टेज पे थे आर्मी में अपीयर होने के लिए, हमें उस तरह गाइड नहीं किया गया। हमें बेसिकली वही जो टिपिकल पाकिस्तान सोसाइटी है, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा इंजीनियर बनो, बेटा लॉयर बनो। वो देखें तोकीर साहब का बेटा इंजीनियर बन गया, वो देखें
शकील साहब का बेटा डॉक्टर बन गया, अमेरिका चला गया। हम लोग इस सोसाइटी के पिसे हुए लोग हैं, तो ये आपके सामने है। थैंक यू सो मच। अली जावेद जी भाई। देखिए अभी और कोई हैं क्वेश्चन वाले? जी एक दो है तो सही कर। चले आप 3 क्वेश्चन बस और ले लें। ओके, मोहम्मद उस्मान अली, आप अपना क्वेश्चन कर लें। मोहम्मद उमर फारूक, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में मेरी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मुझे एक डाउट था कि मैं यानी कि साथ साथ मास्टर्स भी करना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मेरी किसी इदारे में सिलेक्शन हो जाती है और मैं जॉब भी स्टार्ट कर दूँ और साथ साथ मास्टर्स भी कर सकूँ? आप मास्टर्स कहाँ से कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैंने बैचलर्स किया, 2020 में पास आउट हुआ हूँ नस्ट इस्लामाबाद से। लेकिन चले अभी assume मेरी जी सर। चले अज्यूम करते हैं कि आपने अपनी जो मास्टर्स है ना वो यूईटी लाहौर से स्टार्ट कर दिया, सिविल डिपार्टमेंट से, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। साथ ठीक ही है। अभी आपने पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आपकी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज एसडीओ सिलेक्शन हो गई है। अब आपने ये चीज डिपार्टमेंट को बताई है, डिपार्टमेंट से आपने एक तो प्रॉपर एनओसी ले लिया है कि मैं डिपार्टमेंट में आने से पहले ही एमएससी कर रहा था। साथ ही आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि लाहौर में तकरीबन 25 सीट्स हैं एसडीओ की। आपने कोशिश किया है कि उन 25 सीटों में से किसी भी सीट को ग्रैब कर लिया है, कोशिश करके वहां पे अपनी अपॉइंटमेंट करवा ली है। इवनिंग में, डे टाइम में आपने एज एसडीओ ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, इवनिंग में आपने अपनी क्लासेस अटेंड की हैं। इस एग्जाम्पल को आप फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये भी हो सकता है कि पहले मैं अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूं और बाद में मास्टर्स स्टार्ट करूं तो? बिल्कुल, अभी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी 15 एक्सियंस को, एग्जेक्टिव इंजीनियर्स को डेल्फ में भेजा है, प्रॉपर स्कॉलरशिप। 1,06,00,000 रुपया डिपार्टमेंट पे कर रहा है। तो अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉपर आपने एक एनओसी लेना होता है। आप एनओसी लेके अपनी एमएससी शुरू कर सकते हैं। अगर एनओसी अगर आपने थोड़ा डिले करना है तो 3 से 4 साल बाद, अभी वापडा में हमारे तकरीबन 5 लोगों की रिकमेंडेशन हुई है, वो जापान जा रहे हैं सैतामा यूनिवर्सिटी अपनी मास्टर्स करने। तो ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। आपने अभी मास्टर्स करना है, आपने 5 साल बाद करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना चीजों को डिफाइन करें, इन लाइन करें। फ्यूचर इज यूर। और एट द एंड अपनी मेहनत पे यकीन रखें। जो लोग लगे रहते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं, देखिए एक कश्ती है वो समंदर में फंस चुकी है, आपने जो है हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, एफर्ट करना शुरू कर दी है, आप लगे रहे, वो कश्ती एक टाइम आएगा किनारे पे लग जाएगी। लेकिन अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी, अपने एम्स को फॉलो करना छोड़ दिया, तो वो कश्ती उसी तरह समंदर के सेंटर में खड़ी रहेगी, इधर भी पानी उधर भी पानी, और आप डूब जाओगे। मेहनत करो, अल्लाह की जात पे यकीन रखो, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी लाइबा खालिद, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी लाइबा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपकी सीजीपीए मैटर करती है या नहीं? गवर्नमेंट जॉब में नया क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, मैंने सुना है 15 दिन पहले क्राइटेरिया चेंज हुआ है, लेकिन मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। यही जो आपका क्वेश्चन है, अभी जाएं वो वीडियोस भी देखिएगा, अली जाज पीपीएससी। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 40 मार्क्स होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, 10 मैट्रिक, 10 एफएससी, 20 बीएससी। एक टोटल जो फाइनल एग्रीगेट होता है ना, वहां पे एक नंबर पे 10 कैंडिडेट्स होते हैं। अब इसको एग्जांपल के साथ लेते हैं। आपके मैट्रिक में 90% प्लस हैं, आपके 10 मार्क्स लग गए। आपके एफएससी में 90 प्लस है 9%, आपके 10 लग गए। आपके बीएससी में 90% से अबव है, आपके 20 लग गए। अब आपके हो चुके हैं 20 आउट ऑफ, सॉरी टोटल सम किया 10 + 10 + 20, आपके 40 मार्क्स लग चुके हैं। अब आपकी क्लास फेलो है,
उसके मैट्रिक में है 80%, 1 मार्क कट गया। FSC में है 80%, 1 मार्क कट गया। BSc में है 80%, 1 मार्क कट गया। अब उसके उन्होंने लगाए हैं 37, आपके हैं 40। तो मैं आपको बता चुका हूं, एक नंबर पे 10 स्टूडेंट होते हैं, एक नंबर पे 10 स्टूडेंट होते हैं। आपका इस वक्त मेरिट है 1, आपकी दोस्त का मेरिट है 30। ये है एजुकेशनल मार्क्स की अहमियत। जी शाहजेब अमजद, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी पूछो। सर माय क्वेश्चन इज, मेरा नाम शाहजेब अमजद है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एक साल में कितनी अटेम्प्ट होती हैं PPSC की? एक साल में अगर 10 डिपार्टमेंट्स की सीट्स आई हैं तो आप 10 जगह अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सिर्फ लिमिट है, अगर आपने एक डिपार्टमेंट, विद एग्जांपल, अगर आपने पंजाब हाईवे में 3 दफा टोटल अपने पूरे करियर में 3 दफा 40 मार्क्स से कम मार्क्स ले लिए, यानी कि आप 3 दफा एक डिपार्टमेंट में फेल हो चुके हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए उस डिपार्टमेंट में SDO बनने के लिए इनएलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन आप इरिगेशन में, पब्लिक हेल्थ में, लोकल गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मिनिमम लिमिट फॉर 1 डिपार्टमेंट। ओके, जज़ाकल्लाह। जी ये लास्ट क्वेश्चन है अभी। निहाल शफीक, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी निहाल। सर मैंने पूछना ये था, सर GPA इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है PPSC के एग्जाम में, लाइक फॉर एग्जांपल जिनका लोड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइबा को इसी चीज का जवाब दिया है, किस तरह GPA मैटर करता है नहीं करता। अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा गौर से सुनिएगा। बिल्कुल मैटर करता है। YouTube पे वीडियो भी है, फौरन मेरे चैनल पे अभी सेमिनार के बाद देखना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अली इजाज PPSC मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, वहां पे ये वीडियो मौजूद है। आपके अगर 90 प्लस हैं FSC में, मैट्रिक में, BSc में, आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लगेंगे, क्योंकि टोटल एजुकेशनल 40 मार्क्स होते हैं। अगर आपके 80% ओवरऑल, तो आपका एक एक नंबर हर जगह से काट लिया जाएगा। अब आपके लगे हैं 37, आपके दोस्त के लगे हैं 40, यानी आपके 3 नंबर कम है। बिल्कुल जिस तरह E-CAT में एक नंबर पे 10-10 लोग होते हैं, इसी तरह फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये 3 नंबर आपको मेरिट नंबर 30 पे ले जाएंगे, और आपका जो दोस्त है जिसके 40 आउट ऑफ 40 है, उसका मेरिट नंबर 1 होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो YouTube पे मेरे चैनल पे मुकम्मल वीडियो है, वो देख लो। Thank you, sir. It looks to have covered almost everything briefly. Is there anything you would like to add before we wrap up? सबसे पहले तो मैं अगेन, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप सब लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। हम लोग तो ऑब्वियसली सीनियर हो चुके हैं, 4 साल 5 साल डिपार्टमेंट्स में लग चुके हैं। फर्दर हमने तो अब डिपार्टमेंट में ही ग्रो करना है। जिस लाइक मैं हूँ, मैंने वापडा में करना है, मेरा और कोई दोस्त है उसने हाईवे में ग्रो करना है। लेकिन आप लोगों में पोटेंशियल मौजूद है। अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें, अपना प्रॉपर एम डिसाइड करें और दिन रात उसके लिए एक कर दें। और सरोश और उसकी जो आप सब लोगों की आइस की टीम है, बहुत शुक्रिया इन लोगों का, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज सेमिनार अरेंज किया। इसके लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद है। तो तमाम सुनने वालों को एट दी एंड मैं यही कहूँगा, मेरे फेसबुक पेज पे भी यही डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई है। कामयाबी का एक ही रूल है, अल्लाह ताला की ज़ात यानी कि अल्लाह की रहमत। नंबर 2, आपके वालिदैन की दुआएं। नंबर 3, आपकी दिन रात मेहनत। यहाँ पे मैं सम अप करूंगा। आपको जो लगता है ना कि यार वो जो हमारा एक वो दोस्त है, वो तो यार क्लास में आवारा फिरता था, क्लास में तो यार वो सोया ही रहता था, लेकिन यार वो पहली अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। रीजन हो सकता है अल्लाह की जात से उसका कनेक्शन आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है उसके वालिदैन की दुआओं में असर आपके वालिदैन की दुआओं से ज्यादा हो सकता है आपको बताए बगैर
वो अपने रूम में आपसे ज्यादा मेहनत करता हो, इसलिए वो आपसे जल्दी और टाइमली आगे निकल गया है। अपनी मेहनत पे यकीन रखें, मेरिट पे यकीन रखें और इसी तरह के सेमिनार्स अरेंज करते रहें। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ताकि जूनियर्स को एक रोड मैप नजर आ सके। दैट्स ऑल। मेरी तरफ से तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। Great. Thank you, everyone. Thank you, Sir Ali Ijaz. We are very grateful for your time and efforts. Your ability to present the subject in such an interesting way produced one of the most memorable evenings. We hope to hear from you again. Last but not the least, special thanks goes to our director, Mr. Sarosh Aziz, our event heads, Mr. Ali Javed and Mr. Mudassir Naeem, and to our team. Without each one of you, it might not have been possible. The enthusiasm in which you all handled the event was truly exceptional. I sincerely appreciate your role and hope that good work continues in future as well. Mr. Sarosh, would you like to add something? Assalamu alaikum. Sarosh Aziz here. At last, thank you so much, Ali Bhai, from the bottom of my heart for taking time from your busy schedule to be the guest speaker at our seminar of ICE Chapter UT Texla. Your presence and wise words helped magnify our cause in the best possible way. Our seminar was a huge success, mashallah, and alhamdulillah. All thanks to your enlightening words that inspired so many people out there. Thank you so much. और अच्छा, इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात होगी। लास्ट पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज जितने भी जूनियर्स हैं उनको मेरे चैनल का लिंक लाजमी भेजिएगा ताकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, एसडीओ सिविल की किस तरह तैयारी की जा सकती है, उन्हें मेरी वीडियोस के थ्रू इन चीजों का आइडिया हो सके। इंशाल्लाह अली भाई मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। Thank you so much, Ali bhai, for your time. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.